নমস্কাৰ টাইমিটলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই এপলিনা দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী খানাপাৰাত আহি উপস্থিত হৈ বিশাল জনসভাত অসমবাসীক কৰিলে সম্বোধন আৰু অসমবাসীক সম্বোধন কৰিয়ে অসমবাসীৰ বাবে পাঁচটা বৃহৎ ঘোষণা কৰিলে অসমবাসীয়ে পাঁচটা সুবিধা লাভ কৰিব এতিয়া 11,600 কোটি টকাৰ বৃহৎ প্ৰকল্প উন্মোচন কৰাৰ পাছতে অসমবাসীলৈ পাঁচটা ঘোষণা কৰিছে কি এই পাঁচটা বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে আমি লৈ আহিছো সবিশেষ বিজুলী বিল শূন্য কৰাৰ লক্ষ্য বিজুলী বিলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পদপথৰ ব্যৱসায়লৈকে বহুকেইটা ঘোষণা কৰিছে পাঁচটাকৈ বৃহৎ ঘোষণা অসমৰ লাখ লাখ মহিলাক লাখপতি কৰাৰ লক্ষ্য আৰু এইবাৰ যি চৰকাৰখনে মহিলা শ্ৰমিক দৰিদ্ৰ সকলোৰে বাবে যুৱ সমাজৰ বাবে অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰদান কৰিব ভাৰতক উন্নত ৰাষ্ট্ৰৰূপে গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্য এইবাৰ মোদী চৰকাৰৰ এই কথা উল্লেখ কৰিছে ভাষণত দেশৰ 3 কোটি মহিলাৰ লগতে অসমৰ মহিলাকো কৰিব লাখপতি অসমৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলাকো লাখপতি কৰিবলৈ আগবাঢ়িব মোদী চৰকাৰ মোদীয়ে দিয়া গেৰাণ্টি সঁচা হ'বই বুলি মন্তব্য মোদীৰ গেৰাণ্টি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ গেৰাণ্টি বুলি উল্লেখ কৰিছে অসমৰ হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়ালে লাভ কৰিব বিনামূলীয়া বিজুলী মাচুল সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সোলাৰ বহুৱাই দিব হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ ঘৰত সোলাৰ সংস্থাপন কৰিব যাৰ জৰিয়তে বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰিব আৰু বিদ্যুৎ বিল ৰেহাই হ'ব বিজুলী বিল শূন্য কৰাৰ লক্ষ্য আগত ৰাখি মোদী চৰকাৰে এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে অসমৰ লাখ লাখ মহিলাক লাখপতি কৰাৰ লক্ষ্য আগত ৰাখিছে এইবাৰ মোদী চৰকাৰে ভাৰতক উন্নত ৰাষ্ট্ৰৰূপে গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্য ৰাখিছে এইবাৰ মোদী চৰকাৰে মুঠতে পাঁচটাকৈ বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে প্ৰথম কথা হৈছে পদপথৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে ভাল খবৰ আনিছে পদপথৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে এতিয়া শ্বপিং মলৰ কথা কৈছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শ্বপিং মলত এবাৰ পদপথৰ ব্যৱসায়ীসকলে স্থান লাভ কৰিব তেওঁলোকৰ বাবে বৃহৎ অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰিব মনিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰত তেওঁলোকৰ বাবে এটা মল তৈয়াৰ কৰিব একটা মল নামেৰে এটা মল তৈয়াৰ কৰিব সেই মলটোত তেওঁলোকে স্থান পাব পদপথৰ ব্যৱসায়ীসকলে আৰু পদপথৰ ব্যৱসায়ীসকলে তাত যেতিয়া স্থান পাব সম্পূৰ্ণৰূপে মুক্ত হৈ পৰিব পদপথ যাৰ বাবে যান-জঁট সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাথাকে আৰু দ্বিতীয়তে বিজুলী বিল ৰেহাই কৰিব সমগ্ৰ দেশতে বিজুলী বিল ৰেহাই কৰিব আৰু সমান্তৰালভাৱে অসমবাসীও লাভ কৰিব এই বিজুলী বিলৰ ৰেহাই বিদ্যুৎ মাচুলক লৈ যেহেতু আমাৰ ৰাজ্যবাসীৰ সমস্যা বা অভিযোগ নতুন নহয় বিভিন্ন সময়ত দল সংগঠনসমূহে অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছিল এই বিষয়লৈ মন্ত্ৰী আমোলাৰ গৃহৰ সন্মুখতো প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল বিদ্যুৎ মাচুলক লৈ এতিয়া বিদ্যুৎ মাচুল সন্দৰ্ভত বাজেটতো বৃহৎ ঘোষণা কৰিছিলে আৰু এই ঘোষণাৰ প্ৰসংগত এতিয়া দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আহি অসমত এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে আগন্তুক বছৰটোত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সহযোগত বিদ্যুৎ মাচুল ৰেহাই দিয়া হ'ব যেহেতু সোলাৰ সিস্টেম প্ৰতি ঘৰতে সংস্থাপন কৰা হ'ব গতিকে যিসকলে সোলাৰ সৌৰশক্তি সংস্থাপন কৰিব তেওঁলোকে ৰেহাই পাব বিদ্যুৎ মাচুল 300 ইউনিট পৰ্যন্ত বিদ্যুৎ মাচুল ৰেহাই পাব প্ৰতিগৰাকী লোকে আৰু তাৰ বাবে তেওঁলোকে সৌৰশক্তি যেহেতু সংস্থাপন কৰিব গতিকে সোলাৰ সিস্টেম সংস্থাপন কৰাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰিব আৰু তেতিয়াই তেওঁলোকে বিদ্যুৎ মাচুলৰ পৰাও ৰেহাই পাব এনেধৰণে এতিয়া দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিছে আৰু লাখপতি কৰিব প্ৰতিগৰাকী মহিলাক লাখপতি কৰাৰ উদ্দেশ্যে আগবাঢ়িছে বাজেটত যে 3 কোটি মহিলাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে সেই 3 কোটি মহিলাৰ মাজত থাকিব অসমৰো কোটি কোটি মহিলা এনেধৰণে এতিয়া দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমত আহি উপস্থিত হৈ বিশাল জনসভাত খানাপাৰাত সম্বোধন কৰিছিলে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীক আৰু ভাষণ আগবঢ়াইছিলে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমবাসীৰ প্ৰসংগত অসমৰ উন্নয়নৰ প্ৰসংগত কি ভাষণ আগবঢ়াইছিলে আমি সেই ভাষণ আগবঢ়াম भारत माता की असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया जी मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी सर्बानंद सोनोवाल जी रामेश्वर तेली जी असम सरकार के मंत्री सांसद और विधायकगण विभिन्न काउंसिल के प्रमुख और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों अपना लोग সকলোকে মোৰে আন্তৰিক শুভেচ্ছা
ज्ञापन कॉरिडोर आज मुझे एक बार फिर मां कामाख्या के आशीर्वाद से असम के विकास से जुड़े प्रोजेक्ट्स आपको सौंपने का सौभाग्य मिला है। थोड़ी देर पहले यहां 11,000 करोड़ रुपयों के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये सारे प्रोजेक्ट असम और नॉर्थ ईस्ट के साथ ही दक्षिण एशिया के दूसरे देशों के साथ इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी को और मजबूत करेंगे। ये प्रोजेक्ट असम में टूरिज्म सेक्टर में नए रोजगार पैदा करेंगे और स्पोर्टिंग टैलेंट को भी नए अवसर देंगे। ये मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर में भी असम की भूमिका का विस्तार करेंगे। मैं असम के नॉर्थ ईस्ट के अपने सभी परिवारजनों को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं कल शाम को यहां आया। जिस प्रकार से गुवाहाटी के लोगों ने रोड पर आकर के स्वागत सम्मान किया, अबाल वृद्ध सभी हमें आशीर्वाद दे रहे थे। मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैंने टीवी पर देखा कि आप लोगों ने लाखों दीप जलाए। आपका ये प्यार, आपका ये अपनापन, ये मेरी बहुत बड़ी अमानत है। ये आपका स्नेह, आपके आशीर्वाद मुझे निरंतर ऊर्जा देते रहते हैं। मैं जितना आप सबका आभार व्यक्त करूं उतना कम है। भाइयों और बहनों, बीते कुछ दिनों में मुझे देश के अनेक तीर्थों की यात्रा करने का अवसर मिला है। अयोध्या में भव्य आयोजन के बाद मैं अब यहां मां कामाख्या के द्वार पर आया हूं। आज मुझे यहां मां कामाख्या दिव्य लोक परियोजना का शिलान्यास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस दिव्य लोक की जो कल्पना की गई है, मुझे इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। जब ये बनकर पूरा होगा तो ये देश और दुनिया भर से आने वाले मां के भक्तों को असीम आनंद से भर देगा। मां कामाख्या दिव्य लोक परियोजना के पूरा होने के बाद हर साल और ज्यादा श्रद्धालु यहां आकर दर्शन कर सकेंगे। और मैं देख रहा हूं
कि मां कामाख्या के दर्शन की संख्या जितनी ज्यादा बढ़ेगी, उतना ही पूरे नॉर्थ ईस्ट में ये टूरिज्म का प्रवेश द्वार बन जाएगा। जो भी यहां आएगा पूरे नॉर्थ ईस्ट के टूरिज्म की ओर बढ़ेगा। एक प्रकार से ये उसका प्रवेश द्वार बन जाने वाला है। इतना बड़ा काम इस दिव्य लोक के साथ जुड़ा हुआ है। मैं हिम्मता जी और उनकी सरकार की इस शानदार प्रोजेक्ट के लिए सराहना करता हूं। साथियों, हमारे तीर्थ, हमारे मंदिर, हमारी आस्था के स्थान ये सिर्फ दर्शन करने की ही स्थली है, ऐसा नहीं है। ये हजारों वर्षों की हमारी सभ्यता की यात्रा की अमिट निशानियां हैं। भारत ने हर संकट का सामना करते हुए कैसे खुद को अटल रखा, ये उसकी साक्षी है। हमने देखा है कि एक समय में जो सभ्यताएं बहुत समृद्ध हुआ करती थी, आज उनके खंडहर ही बचे हैं। दुर्भाग्य से आजादी के बाद जिन्होंने लंबे समय तक देश में सरकारें चलाई, वो भी आस्था के इन पवित्र स्थानों का महत्व समझ नहीं पाए। उन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए अपनी ही संस्कृति, अपने ही अतीत पर शर्मिंदा होने का एक ट्रेंड बना दिया था। कोई भी देश अपने अतीत को ऐसे मिटाकर, ऐसे भुलाकर, अपनी जड़ों को काटकर कभी विकसित नहीं हो सकता। मुझे संतोष है कि बीते 10 वर्षों में अब भारत में स्थितियां बदल गई है। भाजपा की डबल इंजन सरकार ने विकास और विरासत को अपनी नीति का हिस्सा बनाया है। इसका परिणाम आज हम असम के अलग अलग कोनों में भी देख रहे हैं। असम में आस्था, अध्यात्म और इतिहास से जुड़े सभी स्थानों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। विरासत को संजोने के इस अभियान के साथ ही विकास का अभियान भी उतनी ही तेजी से चल रहा है। बीते 10 वर्षों को देखो तो हमने देश में रिकॉर्ड संख्या में कॉलेज बनाए हैं, यूनिवर्सिटीज बनाए हैं। पहले बड़े संस्थान सिर्फ बड़े शहरों में ही होते थे। हमने आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थानों को, उसका नेटवर्क पूरे देश में फैलाया है। बीते 10 वर्षों के दौरान देश में मेडिकल कॉलेज की संख्या करीब करीब डबल हो चुकी है। असम में भी भाजपा सरकार से पहले 6 मेडिकल कॉलेज थे, आज 12 मेडिकल कॉलेज है। असम आज
नॉर्थ ईस्ट में कैंसर के इलाज का एक बहुत बड़ा केंद्र बन रहा है। साथियों, देशवासियों का जीवन आसान हो, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। हमने 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों के पक्के घर बनाए हैं। हमने घर घर पानी, घर घर बिजली पहुंचाने का अभियान भी चलाया है। उज्ज्वला योजना ने आज असम की लाखों बहनों बेटियों को धुएं से मुक्ति दी है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत बने शौचालयों ने असम की लाखों बहनों बेटियों की गरिमा की रक्षा की है। साथियों, विकास और विरासत पर हमारे इस फोकस का सीधा लाभ देश के नौजवानों को हुआ है। आज देश में पर्यटन और तीर्थ यात्रा को लेकर उत्साह बढ़ रहा है। काशी कॉरिडोर बनने के बाद वहां रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बीते 1 वर्ष में 8.5 करोड़ लोग काशी गए। 5 करोड़ से अधिक लोगों ने उज्जैन में महाकाल महालोक के दर्शन किए। 19 लाख से अधिक लोगों ने केदार धाम की यात्रा की है। अयोध्या धाम में प्राण प्रतिष्ठा को अभी कुछ ही दिन हुए हैं। 12 दिन में ही अयोध्या में 24 लाख से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। मां कामाख्या दिव्य लोक बनने के बाद यहां भी हम ऐसा ही दृश्य देखने वाले हैं। साथियों, जब तीर्थ यात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, तब गरीब से गरीब भी कमाता है। रिक्शे वाले हो, टैक्सी वाले हो, होटल वाले हो, रेहड़ी पटरी वाले हो, सभी की आमदनी बढ़ती है। इसलिए इस वर्ष के बजट में भी हमने पर्यटन पर बहुत बल दिया है। केंद्र की भाजपा सरकार पर्यटन से जुड़े ऐतिहासिक स्थानों के विकास के लिए नया अभियान शुरू करने जा रही है। असम में, नॉर्थ ईस्ट में तो इसके लिए भरपूर संभावनाएं हैं। इसलिए भाजपा सरकार नॉर्थ ईस्ट के विकास पर विशेष जोर दे रही है। साथियों, बीते 10 वर्षों से नॉर्थ ईस्ट में रिकॉर्ड संख्या में टूरिस्ट आए हैं। आखिर ऐसे कैसे हुआ? पर्यटन के केंद्र नॉर्थ ईस्ट के खूबसूरत इलाके तो पहले भी यहां थे, लेकिन तब इतने टूरिस्ट यहां नहीं आते थे। हिंसा के बीच, साधन संसाधनों के अभाव के बीच, सुविधाओं की कमी के बीच आखिर कौन यहां आना पसंद करता? आप भी जानते हैं कि 10 साल पहले असम समेत
पूरे नॉर्थ ईस्ट में क्या स्थिति थी। पूरे नॉर्थ ईस्ट में रेल यात्रा और हवाई यात्रा बहुत ही सीमित थी। सड़कें संकरी भी थी और खराब भी थी। एक राज्य से दूसरे राज्य में आना जाना तो छोड़िए, एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने में भी कई कई घंटे लग जाते थे। इन सारी परिस्थितियों को आज भाजपा की डबल इंजन सरकार ने, एनडीए सरकार ने बदला है। साथियों, पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने यहां विकास पर होने वाले खर्च को 4 गुना बढ़ाया है। 2014 के बाद रेलवे ट्रैक की लंबाई 1900 किलोमीटर से ज्यादा बढ़ाई गई। 2014 से पहले की तुलना में रेल बजट करीब करीब 400% बढ़ाया गया है। और तब तो प्रधानमंत्री आपके आसाम से चुन के जाते थे। उससे ज्यादा काम ये आपका साथी कर रहा है। - 2014 तक यहां सिर्फ 10,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे हुआ करते थे। पिछले 10 वर्षों में ही हमने 6,000 किलोमीटर के नए नेशनल हाईवे बनाए हैं। आज 2 और नई सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है। इससे अब ईटानगर तक कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। आप सभी लोगों की मुश्किलें और कम होगी। साथियों, आज पूरा देश कह रहा है कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। मैंने गरीबों को, महिलाओं को, युवा और किसान को मूल सुविधा देने की गारंटी दी है। आज इनमें से अधिकतर गारंटियां पूरी हो रही है। हमने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी देखा है, जो भी सरकारी योजनाओं से वंचित थे उन तक पहुंचने के लिए मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंची है। पूरे देश में करीब करीब 20 करोड़ लोग सीधे तौर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए हैं।